नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं प्रशांत गोखलानी और मैं आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल सीरीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो इस श्रृंखला में, इस सीरीज में जो सबसे पहला चैप्टर आज हम देखेंगे वो है नंबर सिस्टम। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और बाइनरी नंबर सिस्टम। इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद हम एक क्विक रिवीजन करेंगे दोनों टॉपिक्स का, और फाइनली एक क्विज होगी जहां आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आंसर्स आपको कमेंट्स में देने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। All the numbers that exist are all complex numbers. Complex numbers can be further subdivided into real numbers and imaginary numbers. Real numbers are the numbers which we deal in day-to-day mathematics. तो real numbers ऐसे numbers हैं जो हम day-to-day mathematics और general mathematics में deal करते हैं। इनके कुछ examples है 0, -1, pi, -√2, 2/3, etc. Imaginary numbers are all multiples of root of -1. Root of -1 is basically represented by a character I, which stands for iota. So the other examples of imaginary numbers are I, 2i, 22i, etc. Now real numbers can be further subclassified into rational numbers and irrational numbers. Rational numbers are represented by set Q. Some examples are 0, -1 and 2/3. The definition of rational numbers is simple. The numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called rational numbers. So 0 is a rational number because it can be represented in the form p by q like 0/1. Irrational numbers, whereas, are opposite of rational numbers. The numbers which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Examples are pi and -√2. Now, rational numbers can be further classified into integers and fractions. Integers are rational numbers which have their denominator as 1, whereas fractions don't have their denominator as 1. Now, integers are represented by set Z. Examples are -2, -1, 0, 1, 5. Fractions, some examples are 2/3, -3/2 and 1/4. Integers can be further classified into positive integers, 0 and negative integers. All the numbers ranging from +1 to plus infinity are called positive integers, whereas all the numbers ranging from -1 to -infinity are called as negative integers. The set 0 only comprises of a single number, that is 0. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सारे इंटीजर्स को हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे बीच में 0 होता है और नंबर लाइन 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नंबर लाइन एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है जो आप सभी को पता होना चाहिए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल नंबर्स को सेट n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 1, 10, 8, 92। जबकि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के साथ हम जब 0 को कंबाइन कर देते हैं तो होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स इसके कुछ हैं 0, 52 और 960। नाउ नेचुरल नंबर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या हो गए? द नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, लाइक 2, 3, 11. They have only 2 factors. Like 2 has only 2 factors, 1 and 2. 3 has only 2 factors, 1 and 3. 11 has only 2 factors, 1 and 11. Composite numbers are the numbers which have more than 2 factors. Like 4, 9, 52. 4 has 3 factors, 1, 2 and 4. So similarly 9 and 52 as well. Now numbers, natural numbers can be also classified as even numbers and odd numbers. The numbers which are divisible by 2 are called even numbers, and the numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. So examples of even numbers are 2, 224, 524, and examples of odd numbers are 3, 99 and 9. So guys, after having a look on classification of numbers, let's solve a question on rational numbers. The question is, a rational number between 3/4 and 3/8 is? Options are 7/3, 16/9, 9/16 and 1/7. ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था।
ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लीजिए, दोनों हायर नंबर का और लोअर नंबर का। तो 3/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 3/4 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1/4। 1/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें पता है 0.25, तो 3/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0.25, और 3 इंटू 0.25 हो गया 0.75। ये नंबर लेस देन 1 है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको आगे बताता हूं। 3/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको 3/4 का ही हाफ करना है। तो 3/4 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.75, तो 3/8 की वैल्यू हो जाएगी 0.75/2, दैट इज 0.375। अब ये भी नंबर लेस देन 1 है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये दोनों नंबर लेस देन 1 है, तो इनके बीच का एग्जिस्ट करने वाला नंबर भी कैसा होगा? लेस देन 1 होगा। आप ऑप्शन ए देखिए 7/3, तो मोर देन 1 है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी देखिए 16/9, ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचे दो ऑप्शन 9/16, 1/7। अब 9/16 की वैल्यू आ रही है 0.56, जो कि एग्जिस्ट करती है 0.75 और 0.375 में, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन डी पे भी नजर डाल लेते हैं। 1/7 जो है 3/21 हो गया, और 3/21 तो 3/8 से ही कम होगा, तो ये ऑब्वियसली 3/4 और 3/8 के बीच में नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन हो गया सी 9/16। गाइज मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिविया बताना चाहूँगा। अगर आपको कभी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं दो नंबर्स ए और बी के बीच में, तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, k + b अपॉन k+1। k की वैल्यूज 1, 2, 3 एक्सेट्रा पुट करके। दोस्तों अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स को हम बेस के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर बेस 2 है तो बाइनरी नंबर सिस्टम, बेस 10 है तो डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 8 है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 16 है तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन पे, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। इसमें एग्जांपल 1 पर नजर डालिए। फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 111001। अब इस क्वेश्चन में आपको बाइनरी डिजिट्स को, जो कि है 1 और 0, इन बाइनरी डिजिट्स को 2 के रिस्पेक्टिव पावर से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको सिंपली एक टेबल के फॉर्मेट में समझना चाहें तो कुछ ऐसा होगा। आप ऊपर लिख लीजिए बाइनरी नंबर्स और नीचे लिख लीजिए पावर ऑफ 2। बाइनरी नंबर आपका है 111001, तो वैसे का वैसा लिख लीजिए 111001। अब 2 के पावर्स इसके नीचे लिखते जाना है आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम 2⁻0 टिल द वेरी लास्ट पावर। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5। ठीक है, और अब हम नीचे के जो 2 के पावर है उसको हम ऊपर के बाइनरी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 को 2�5 से, 1 को 2�4 से, 1 को 2�3 से, 0 को 2�2 से, 0 को 2�1 से और 1 को 2�0 से। इन सारे प्रोडक्ट्स को हमें आखिर में ऐड कर देना है। गाइज अब इसको करने का और एक आसान तरीका है। सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। जैसे कि 6 डिजिट्स हैं इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर बाइनरी डिजिट में, तो आपका जो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 होगा वो 6 - 1, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स -1, जो कि हो गया 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट को 2�5 से, फिर उसके बाद वाले डिजिट को 2�4 से, उसके बाद वाले डिजिट को 2�3 से, फिर उसके बाद वाले डिजिट को 2�2 से, और आखिरी डिजिट को 2�0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको ये टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे मल्टीप्लिकेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा 57। राइट, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर निगाह डालते हैं 10011। ठीक है, अब इसका मुझे डेसिमल नंबर ढूंढना है, इसका मुझे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ढूंढना है। तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले इसके डिजिट्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट्स है, तो हाईएस्ट पावर 2 का कितना होगा? 2�5 होगा। 6 - 1 मतलब 2�5 होगा। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 2�5 से। फिर उसके बाद वाले डिजिट को 0 को 2�4 से, फिर 0 को 2�3 से, फिर 0 को 2�2 से, 1 को 2�1 से और आखिरी 1 को 2�0 से। इन सभी को ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 35। तो आई गेस आप लोगों को ये समझ गया होगा।
अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर निगाह डालते हैं। सो गाइज, जैसे हम लोगों ने देखा कि बाइनरी टू डेसिमल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कन्वर्जन कैसे किया जाता है, उसी तरह से आइए देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी में जो बेसिक रूल है वो है रिपीटेड डिवीजन बाय 2। जैसे अगर आपको 156 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 156 को 2 से डिवाइड करेंगे। जो आपका क्वोशंट आएगा उसको आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं 78, और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 इंटू 78 हो गया 156, रिमाइंडर बचा 0, तो मैंने वो यहाँ पर लिखा। अब जो क्वोशंट आएगा उसको हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 इंटू 39 हो गया 78, रिमाइंडर वापस बचा 0। इसी तरह 39 को वापस हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 इंटू 19 हो गया 38, रिमाइंडर बचा 1। 19 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, बचा रिमाइंडर 1। 9 को वापस डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर बचा 2 4 8, रिमाइंडर बचा 1। 4 को वापस करेंगे आप 2 से डिवाइड, तो 2 2 4, रिमाइंडर बचा 0। 2 को वापस करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 1 2, रिमाइंडर बचा 0। और आखिर में 1 बचा है तो वो रिमाइंडर वैसे का वैसा आ जाएगा। अब इस सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर्स को आपको बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है, लेफ्ट टू राइट। मतलब जो सबसे बॉटम में है वो सबसे लेफ्ट में आ गया 1, उसके बाद जो टॉप में है उसके वो है 0, तो वो उसके राइट में आ गया। उसके बाद वाला 0 उसके राइट में आ गया, और उसी तरह से जो आखिरी 0 है वो राइट मोस्ट आपका बाइनरी का डिजिट बन जाएगा। तो इस तरह से आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। मैंने और एक एग्जांपल आप लोगों के लिए रखा है। अगर आपको 132 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप एक बार इस एग्जाम्पल को रेफर कर लीजिए, कैसे रिपीटेड डिवीजन बाय 2 से आप 132 का भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सीख सकते हैं। सो गाइज, इसी के साथ हमारे इस लेसन के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। जाने से पहले एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं सारे टॉपिक्स। सबसे पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जहां हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जैसे रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को जाना, उनकी डेफिनेशंस को समझा और कुछ एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को देखा जिनका बेस 2 होता है और जिनमें 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में आपको इंडिविजुअल डिजिट्स को 2 के पावर से मल्टीप्लाई करना होता है और उन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करना होता है। और कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी में आप बेसिकली 2 से रिपीटेड डिवीजन करके जो रिमाइंडर्स आते हैं उनसे फाइनल बाइनरी डिजिट ऑब्टेन करते हैं। सो आई होप गाइज आप सभी को ये तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप आने वाले एग्जाम्स में भी इन टॉपिक्स पे आए सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइज, एट द एंड इट्स क्विज टाइम। मैंने आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस रखे हैं उन्हीं 3 टॉपिक से जिनको मैंने आज आपको पढ़ाया है। आप इनके आंसर्स कमेंट्स में दीजिए, मैं रिप्लाई करके बताऊंगा आपने सही आंसर दिया है कि नहीं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ में कमेंट्स में आप बताइए कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे।